بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، سر ظفر یوٹیوب کے زی ٹویٹر چینل سے ٹاپک ہے ہمارا آج ملٹی پلائر یا ضارب۔ تو سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ملٹی پلائر یا ضارب کہتے کس کو ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جب کسی قوم کی انویسٹمنٹ میں اضافہ ہو جائے، جب کسی قوم میں کاروبار زیادہ ہو جائے تو اس کاروبار میں اضافے کے نتیجے میں اس قوم کی آمدنی بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہاں اسٹوڈنٹ یاد رکھیے گا کہ آئی انویسٹمنٹ کے لیے اور وائی ہم ان کے لیے لکھتے ہیں۔ تو اگر کسی قوم کی انویسٹمنٹ میں اضافہ ہو جائے تو اس قوم کی انکم میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن قوم کی آمدنی میں جو اضافہ ہوتا ہے یا انویسٹمنٹ میں اضافے کے نتیجے میں وہ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ قوم انویسٹمنٹ بھی 1,00,000 روپے کی کرے اور آمدنی بھی 1,00,000 روپے ہی کی ہوگا ایسا کہ آپ کی انویسٹمنٹ میں اضافہ اگر 2,00,000 روپے کا ہے تو اس کے نتیجے میں آمدنی میں اضافہ 4 یا 6 یا 7 یا 8,00,000 روپے کا ہو جائے گا۔ تو قوم کی انویسٹمنٹ میں اضافے سے آمدنی میں ہونے والے اضافے کو ملٹی پلائر کا نام دیتے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ میں اضافے سے آمدنی میں اضافہ کتنا ہوگا؟ اس کا تعلق جو ہے وہ براہ راست ملٹی پلائر سے ہی ہوتا ہے۔ اگر کسی قوم کا ملٹی پلائر فرض کر لیتے ہیں 4 ہے تو اس قوم کی انویسٹمنٹ کے نتیجے میں آمدنی میں 4 گنا اضافہ ہو جائے گا۔ اگر اس کو ہم 6 فرض کر لیتے ہیں تو انویسٹمنٹ میں اضافے سے آمدنی 6 گنا بڑھ جائے گی۔ اگر یہاں ہم 2 فرض کر لیتے ہیں ملٹی پلائر تو انویسٹمنٹ میں اضافے سے آپ کی آمدنی 2 گنا بڑھ جائے گی۔ تو جتنا زیادہ ملٹی پلائر کوایفیشنٹ بڑا ہوگا اس قوم کی آمدنی میں اتنا ہی اضافہ زیادہ ہوگا انویسٹمنٹ میں اضافے کے نتیجے میں۔ یہی وہ چیز جو کہ قوم کی انویسٹمنٹ میں اضافے سے قوم کی آمدنی میں تبدیلی لے کے آتا ہے، اسی کانسیپٹ کا نام ملٹی پلائر ہے۔ تو ملٹی پلائر جتنا زیادہ بڑا ہوگا اتنی ہی آمدنی میں اضافہ زیادہ ہوگا، ملٹی پلائر چھوٹا ہوگا قوم کی آمدنی میں بھی تھوڑا اضافہ ہوگا۔ تو آئیے اسٹوڈنٹ ہم اس کو باقاعدہ ایک چارٹ کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ میں یہاں یہ بتاتا چلا جاؤں کہ ملٹی پلائر کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، نومیریکل سسٹم بھی ہے، میتھمیٹیکل سسٹم بھی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی العزیز ایک ایک کر کے سب پر جائیں گے۔ آج ہم صرف اور صرف اس کی ٹیبل پر جو ہے اس کی وضاحت وہی کریں گے کہ کسی قوم میں نئی انویسٹمنٹ میں آ جانے سے ہماری اس قوم کی آمدنی میں کیا تبدیلی آئے گی۔ ملٹی پلائر کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ میری پہلی ویڈیوز جو ہے جس میں ایم پی سی اور ایم پی ایس میں نے وضاحت سے بتایا ہے وہ ضرور دیکھ لیجئے گا، کیونکہ ملٹی پلائر کا براہ راست تعلق جو ہے ایم پی سی سے ہوتا ہے۔ میں پھر بھی وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے میری وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو ان کے لیے ہلکا پھلکا بتا دوں کہ ایم پی سی ہوتا کیا ہے۔ بیسیکلی تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے، ہم کہتے ہیں کہ کسی قوم کا ایم پی سی 0.75 ہے تو پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس 0.75 کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 75/100 یا 0.75 ایک ہی چیز کے 2 نام ہے، اور اگر اس کو شارٹ فارم میں لے جائیں تو آپ اس کو 3/4 بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ہی شیپ ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ایم پی سی ہوتا کیا ہے۔ سادہ ترین لفظوں میں تو ہم ایم پی سی کہتے ہیں کسی قوم کے خرچ میں تبدیلی کے رجحان کو۔ آمدنی میں تبدیلی آئے گی تو خرچ میں بھی تبدیلی آئے گی، کیا ریشو رہے گا، کیا تبدیلی رہے گی، تفصیل سے آپ میری وہ ویڈیو پلیز دیکھیں۔ یہاں میں صرف آپ کو مختصر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب کسی قوم کا ایم پی سی 0.75 ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 100 پیسوں میں سے 75 پیسے قوم خرچ کرے گی، باقی 25 پیسے انڈرسٹوڈ ہے وہ سیونگ میں جائے گی۔ 75/100 کا مطلب ہے کہ قوم 100 روپے کمائے گی تو 75 روپے جو ہے وہ خرچ کرے گی، باقی سیونگ میں چلا جائے گا۔ 3/4 کا مطلب یہ ہوگا کہ قوم 4 روپے کمائے گی تو 3 روپے خرچ میں چلے جائیں گے، 1 روپیہ جو ہے وہ سیونگ میں چلا جائے گا۔ تو ایم پی سی دراصل کسی قوم میں آمدنی میں تبدیلی کے نتیجے میں جو صرف میں تبدیلی آتی ہے اس کا ریشو ہوتا ہے۔ سادہ لفظوں میں ہم بس یہ کہیں گے۔ تو آج ہم فرض کر لیتے ہیں کہ کسی قوم کا ایم پی سی جو ہے وہ 0.75 ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قوم میں جب بھی آمدنی آئے گی اس آمدنی کا 75% قوم خرچ کرے گی، 25% بچائے گی۔
100 रुपये हासिल करेगी 75 रुपये खर्च करेगी, 4 रुपये हासिल करेगी 3 रुपये खर्च करेगी। तो जहन में ये रखना है कि हमारी कौम का जो MPC है वो आज कुछ इस तरह है, हम इस पर चलेंगे। मल्टीप्लायर जब तक नहीं क्लियर हो सकता जब तक हमारे पास MPC या MPS दोनों में से कोई एक चीज़ होना ज़रूरी है। MPC ज़रा इजी वे में चलते हैं, हम समझने में आसानी हो जाती है, इसलिए हम MPC पर चलते हैं, वरना ये MPS पर भी चल सकते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि किसी कौम की इन्वेस्टमेंट में 5,000 रुपये का इजाफा हो जाता है, कौम 5,000 रुपया नया इन्वेस्ट कर देती है, इसका मतलब है कि ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट होगा। अब फर्ज कर लेते हैं कि एक आदमी 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे ही 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करता है वो 5,000 रुपये किसी दूसरे शख्स की यकीनन आमदनी में इजाफे का सबब बन जाएगा। तो हम कहते हैं कि जैद ने 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की, जो उस कौम की इन्वेस्टमेंट समझी जाएगी, तो उस कौम की 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से किसी न किसी शख्स के आमदनी में इजाफा हो जाएगा। इस शख्स ने, फर्ज कर लेते हैं कि इस शख्स ने 5,000 रुपया खर्च किया, तो ये कहाँ खर्च करेगा, किसी न किसी को तो देगा ये 5,000 रुपया। तो ये 5,000 रुपया इसने, जो ए शख्स ने खर्च किया, फर्ज कर लेते हैं बी शख्स को दे दिया। तो बी शख्स जो है, जो पहला फेज़ हम शुरू करते हैं, हम कहते हैं कि उस शख्स की आमदनी में 5,000 रुपये का इजाफा हो गया। यहाँ ख्याल रखिएगा कि 5,000 आमदनी नहीं है बट चेंज इन इनकम है, पहले भी उसकी आमदनी होगी कोई ना कोई। तो 5,000 रुपया जैद ने, 5,000 रुपया किसी शख्स ने इन्वेस्ट किया, वो इन्वेस्ट करके कोई चीज़ खरीदेगा और जिस शख्स से वो चीज़ खरीदेगा उस शख्स की पॉकेट में वो 5,000 रुपया चला जाएगा, जिसकी वो आमदनी बन जाएगा। अब इस शख्स की आमदनी में, इसको पहला फेज़ दूसरा फेज़ समझने की बजाय हम एक शख्स भी करार दे सकते हैं। हम कहते हैं पहला शख्स या पहला फेज़, उसकी आमदनी में 5,000 रुपये का इजाफा हो गया। अब जैसे ही 5,000 रुपये का इजाफा होगा, उस कौम का मल्टीप्लायर है 0.75। 0.75 का मतलब यह है कि वो 75% पैसा खर्च करेगा। अब 5,000 रुपये की इजाफी आमदनी से उसने 75 रुपीज़ खर्च करने हैं और 25 रुपीज़ बचाने हैं। इसका मतलब है कि उसकी आमदनी अगर 5,000 रुपये बढ़ जाती है तो उस 5,000 रुपये में से 3,750 रुपया, जो कि 75% बनता है, वो खर्च में ले जाएगा और 1,250 रुपया, जो कि 25% बनता है, वो अपनी सेविंग में ले जाएगा। अब ये जो शख्स है या ये जो दौर है, इस दौर में 5,000 रुपये का इजाफा हो, उसमें से 3,750 रुपये खर्च में चले गए, 1,250 रुपया जो है वो सर्फ में बच गए और उसको हम सेविंग में ले गए। इस दुकानदार ने 5,000 रुपया हासिल किया। यहाँ ख्याल रखिएगा स्टूडेंट, दुकानदार का मतलब दुकानदार नहीं, मैं समझाने के लिए दुकानदार का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना ये कौम की बातें हो रही हैं, सारी की सारी कौम की बातें हैं। दुकानदार की बात करेंगे, एक पर्सन की बात करेंगे, समझने में ईजी हो जाएगा, वरना ये कौम है, एक कौम कहेंगे हम। तो 5,000 रुपये का यहाँ इजाफा हुआ, इसने उसमें से 3,750 रुपये खर्च किए। जब ये 3,750 रुपये खर्च करेगा तो यकीनन ये खर्च करने के लिए किसी दूसरे शख्स को देगा, किसी दूसरे दौर को दे देगा, किसी दूसरी कौम को दे देगा। तो इसका जो खर्चा है वो किसी दूसरे शख्स की आमदनी बन जाएगा। यूं 5,000 के नए इन्वेस्टमेंट से इस दौर में 5,000 रुपये का इजाफा हुआ, दूसरे दौर में 3,750 रुपये का इजाफा हो गया। अब 3,750 रुपये कौम में फालतू आ गए, ये इसकी आमदनी में ये खर्चा हो जाएगा, ये अखराजात किसी दूसरे दौर की आमदनी बन जाएगा। 3,750 रुपये में फिर एक दफ़ा 75% खर्च में 25% बचत में जाएगा। 3,750 का 75% ये बनेगा 2,810 रुपये, ये खर्चे में चला जाएगा और 3,750 में से 2,810 रुपये कंजम्पशन में चला जाएगा। बाकी 940 रुपये जो है वो हमारे सेविंग में चला जाएगा और दूसरा दौर शुरू हो गया हमारा। अब दूसरे दौर का जो खर्चा है वो तीसरे दौर की आमदनी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है ये 2,810 रुपये जब ये खर्च करेगा तो यकीनन ये 2,810 रुपये हमारे पास इस तीसरे दौर की या तीसरे पर्सन की आमदनी बन जाएगा। अब ये जो 2,810 रुपये है, इस 2,810 रुपये को आगे फिर दो हिस्सों में तकसीम होना है। 75% इसका सर्फ में और 25% इसका बचत में चला जाएगा। तो 2,810 रुपये का जो 75% है वो हमारे पास बन जाएगा 2,110 रुपया
और 700 रुपया इसमें से जो कि 25% बनता है इसका, वो बचत में तब्दील हो जाएगा। अब ये जो तीसरा शख्स है या जो तीसरा दौर है उसका खर्चा जो है वो उसमें इजाफा हुआ है 2100 रुपये का। ये 2100 रुपये का इजाफा अगले दौर की आमदनी बन जाएगा। जाहिर है कि जो मेरा खर्चा है वो आपकी आमदनी है, जो आपकी आमदनी है वो किसी दूसरा का खर्चा होगा। तो मेरा खर्चा आपकी आमदनी, आपका खर्चा किसी और की आमदनी, उसका खर्चा किसी और की आमदनी, यूँ एक चेन बन जाता है। तो हमारा 1110 रुपये जो खर्चा होगा ये किसी नेक्स्ट दौर की आमदनी बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका खर्चा इस दौर की आमदनी बन जाएगा। इस तरह 2110 रुपये अगले दौर की आमदनी बन जाएगा। अब ये हमारे पास 1110 रुपये जो इस दौर की आमदनी में इजाफा हुआ, इसे फिर दो हिस्सों में तकसीम होना है। 25% जो है वो हमारा चला जाएगा सेविंग में और हमारे पास जो 75% है वो चला जाएगा इसमें। इसका मतलब है कि 1580 रुपया हमारा खर्च में चला जाएगा और 530 रुपये हमारा जो है वो सेविंग में चला जाएगा। हम स्टूडेंट देख रहे हैं कि यहाँ 5000 रुपये का इजाफा हुआ एक शख्स की आमदनी में, एक दौर की आमदनी में। उसने दो हिस्सों में तकसीम किया, उसने 3750 रुपये खर्च किया। ये 3750 रुपये जब ये खर्च करेगा तो इसकी आमदनी बन जाएगा। इस 3750 रुपये से 2810 ये खर्च करेगा, ये 2810 किसी अगले दौर की आमदनी बन जाएगा। 2810 में से ये जो हमारे पास 2110 है, ये 2110 अगले दौर की आमदनी बन जाएगा। उस 2110 में से 1580 रुपये खर्च करेगा वो, और ये 1580 रुपये अगले दौर की आमदनी बन जाएगा। दौर की आमदनी 5000 है, दूसरे की कम हो गई, तीसरे की कम, चौथे की कम, ये मुसलसल कम हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पहले शख्स की जो सर्फ में इजाफा हुआ वो 3700 का है, बाद वाले का 2800, बाद वाले का 2100, बाद वाले का 1500, ये मुसलसल कम हो रहा है। और सेविंग का रेशो भी मुसलसल कम हो रहा है। ये कम होते होते एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब आखिरी शख्स की आखिरी दौर की आमदनी में 1 रुपये का इजाफा होगा और उसमें से इतने पैसे वो खर्च करेगा और उसमें से इतने पैसे वो सेव कर लेगा। अगर स्टूडेंट्स आप इन तमाम को जमा कर लें, 5000 को, 3700 को, 2800 को, 2100 को, इन तमाम चीज़ों को अगर आप जमा कर लें तो ये हमारे पास टोटल बनेगा 20,000 रुपया। अगर आप इसको जमा कर लेते हैं तो ये बनेगा हमारे पास 15,000 रुपया। अगर आप इनको जमा कर लेते हैं तो ये बनेगा हमारे पास 5,000 रुपये। स्टूडेंट घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये फिगर कहाँ से आया मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो ये देखें 20,000 इसको जमा किया आपने, सबको जमा करते चले जाए। यहाँ हमारे पास बहुत सारे फिगर हम छोड़ गए हैं। जाहिर है कि हमारे पास इतना ना तो बड़ा बोर्ड होता है ना इतना टाइम होता है, ये खास कैलकुलेशन है जिससे हम इसको चेक करेंगे। तो अगर इन तमाम फिगर्स को जमा करें जो हमने दरमियान में ड्रॉप कर दी हैं, 1 रुपया तक जाएंगे हम आहिस्ता आहिस्ता। इन तमाम फिगर्स को अगर जमा करेंगे तो ये 20,000 बन जाएगा, ये 15,000 बन जाएगा, ये 5,000 रुपये बन जाएगा। तो अब हम यहाँ एक छोटे से नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमारे पास MPC जो है वो 0.75 है। MPC को अगर शॉर्ट फॉर्म में लेके जाएं तो 3/4 बनता है। ये दरअसल आम तौर पर MPC के नीचे वाला जो फिगर होता है ये अमूमन मल्टीप्लायर ही होता है। इसका मतलब है कि यहाँ मल्टीप्लायर 4 है। तो आप गौर करें कि हमारी इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ था 5,000 रुपये का। 5,000 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास देखें 20,000 रुपये का इजाफा हो गया आमदनी में। तो मल्टीप्लाई 4 है तो आमदनी 4 गुना बढ़ गई। अब हमारे पास एक फार्मूला है के को मालूम करने का, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास। हम कहते हैं डेल्टा वाई फाइंड आउट करेंगे हम इसको इस फार्मूले से। अगर आप यहाँ देख लें तो हमारी आमदनी में जो इजाफा मैंने अभी अभी आपको बताया है वो है 20,000 रुपये का, और हमारी इन्वेस्टमेंट में जो इजाफा हुआ था वो है 5,000 रुपये का। अगर आप इसको हल कर देंगे तो ये 4 आएगा। इसका मतलब है कि कॉम का जो मल्टीप्लायर है वो 4 है। इसका मतलब है कि कॉम की आमदनी में 4 गुना इजाफा होगा। अगर कॉम 5,000 की इन्वेस्ट करती है तो कॉम 20,000 रुपये नया पा लेगी 4 से मल्टीप्लाई करके। अगर मल्टीप्लाई 5 होता तो ये 25,000 हो जाता, अगर मल्टीप्लाई 6 होता ये 30,000 हो जाता। तो जितना बड़ा मल्टीप्लायर का फिगर होगा उतनी ही कॉम की आमदनी में इन्वेस्टमेंट की वजह से इजाफा ज़्यादा होता चला जाएगा। तो स्टूडेंट अगली वीडियो में आपको ये बताएंगे हम कि ये दरअसल के को फाइंड आउट करने के फार्मूलाज क्या हैं।
ویڈیو میں مزید آپ کو فارمولیشن سکھائیں گے کہ ملٹی پلائر کا یہ فارمولہ کیسے آتا ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھتے رہیے گا. حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اس کو شیئر کریں، فارورڈ کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کو ضرور بتایا کریں، اپنے کمنٹس ہم تک ضرور بھیجا کریں. اللہ آپ کا حامی اور ناصر. السلام.